Stokes theorem already last session में करे थे. Second question of Stokes theorem I am doing. Okay, now question is verify Stokes theorem for the vector field f is equal to f value is there over the upper half of the surface. Surface is there in the question. Boundary by its projection. Boundary by its projection. Now tell me what is the statement of Stokes theorem. We have already completed one problem. This is the second problem of the Stokes theorem. Step number 1, we have to write the Stokes theorem because it is asking to verify. Proof. Your first step will be every time if it is asking to verify Stokes theorem, then the first step will be the Stokes theorem by Stokes theorem. By Stokes theorem, integral over C f dot dr is equal to double integration over S curl f dot n cap ds. This is the statement of Stokes theorem. So now क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन कहां पर वेरीफाई करना पर द अपर हाफ सरफेस ऑफ दिस वन x square plus y square plus z square is equals to 1 boundary by its projection on xy plane. So f dot dr की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, so now solution. Already statement we wrote, so now continue. F dot dr value because we required in RHS find out that value f dot dr. F is there in our question. What is f? 2xy, 2x minus y, 2x minus y of I cap minus y z square of j cap minus y square z into k cap. This is our value of f. This one we have to do the dot product with dr, that is dxi plus dyj plus dzk. Now already we know that I dot I is 1. So we are left with this one. 2x minus y. First term we are multiplying with the first term. I dot I is 1. So 2x minus y into dx. Now again j dot j is 1. So we say minus y z square dy minus y square z into dz. But now in our question you see it is given to find out in xy plane. So when I am taking this value in xy plane, we know that xy plane में क्या होता, z value will be 0, which z value will be equal to 0. So if I am putting the z value 0 in these two, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, so we get only the value is 2x minus y dx. 2x minus y dx is the value of f dot dr. F dot dr. Now we have to integrate this one because integration is also required. Now taking integral over c on both sides, integral over c f dot dr
is equal to integral over c 2x minus y into dx. Now look at, we have to integrate this one, but यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए या तो ये क्वेश्चन पूरा x में कन्वर्ट हो जाना, या तो ये क्वेश्चन पूरा y में कन्वर्ट हो जाना, अदरवाइज वी कैनॉट सॉल्व इट। अब इसके लिए कोई हिंट भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है, y0 dy0, ऐसे कुछ भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन को अपन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म क्या रहता, देखिए एक बार। और ये फिगर, ये एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन एक सरफेस है। इसमें अगर जेड जीरो ले लिए तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, विच इज नथिंग बट अवर सर्किल। तो ये सर्किल है, ऐसा वाला सर्किल। ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिगर को इमेजिन कर रहे हो नाउ। ये इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाउंड्रीज ले लीजिए आप, ये वाला, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। So now what to do here is, अब ये फिगर कैसा देखने आए, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट 0,0, ओके, एंड दिस इज, ये 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है, ये वाला सर्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया, क्योंकि इसमें अपन ये कंडीशन भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, Z0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 1 यूनिट रेडियस का सर्किल बोलते हो इसका 1 0, यहाँ पर हो जाता है -1 0, ये हो जाता है 0 1 0 1, ये हो जाता है 0 - आप चाहे तो इस सर्किल को जरा एग्जैक्टली मिडिल में भी फिर से अच्छे से उतारना हो तो उतार सकते हैं। भी दिख रहा होगा, सर्किल ऑफ 1 यूनिट रेडियस, दिस पॉइंट इज, थोड़ा खरीद में लिखते हैं 0 1। तो अब एक्स के लिमिट्स क्या हो सकते हैं, वाई के लिमिट्स क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स। कब यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स पर, कब कन्वर्ट करेंगे, जब अपने पास एक्स और वाई को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब क्वेश्चन या तो एक्स में या वाई में कन्वर्ट नहीं हो सक रहा, ऐसे केस में एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, comma y की वैल्यू r sin theta, r sin theta, but already we know that radius is 1 unit because a circle of 1 unit radius है, तो x हो जाता r value 1 means cos theta, y is equal to r value 1 means sin theta. So now if you differentiate you will get dx is equal to cos theta का differentiation minus sin theta d theta, dy is cos theta d theta। तो ये पूरे वैल्यूज को और लिमिट्स, सर्किल के लिमिट्स क्या होते हैं, कभी भी याद रखो, स्टैंडर्ड लिमिट्स है, लिमिट्स ऑफ सर्किल, लिमिट्स ऑफ सर्किल, सर्किल के लिमिट्स 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, मतलब सर्किल के जो लिमिट्स है, जीरो से लेके थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पर 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 360 मतलब 2 पाई। अब ये पूरे वैल्यूज को इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर में इधर सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करें तो एलएचएस का आंसर आता है। उसके बाद ऐसे चक्कर आरएचएस भी करना है। चलिए देखिए, इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी 2 इंटू व्हाट इज एक्स, एक्स विल बी आर कॉस थीटा, आर वैल्यू तो 1 हो गया मतलब कॉस थीटा, माइनस आर वैल्यू 1 हो गया तो साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डी वाई, और देख सकते हैं आप
dy is nothing but cos theta d theta. dy होना है, क्या होना है, dx होना है, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा. Now this one and this one we have to multiply. Moreover, this one and this one also we have to multiply. And limits भी यहाँ पर अपन ले लेंगे अभी. थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई बोल के यहीं पे भी ले सकते स्टार्टिंग में भी. सो नाउ माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा and into dt into dt. Now this one if you simplify, यहाँ पर मैं अपन जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला यूज करने वाले वो लिख दे रहा हूँ. साइन 2 थीटा is equals to 2 sin theta cos theta and sin square theta trigonometry first year is equals to 1 minus cos 2 theta by 2. दो फॉर्मूलास किधर यूज करें. दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई माइनस तो एज इट इज रहेगा. एक काम कर सकते हैं, माइनस आउटसाइड निकाल देके 2 sin theta cos theta कैन बी रिटन एज sin 2 theta d theta प्लस अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं, मतलब दोनों को अलग अलग लिमिट्स अप्लाई कर दे रहा हूँ. 0 to 2 पाई sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta by into d theta. Now this is equal to minus must be there. Sin का integration minus cos होता, minus into minus plus cos 2 theta by theta coefficient is 2. Limits theta is equal to 0 to 2 pi प्लस इसमें से ये 1/2 को आउटसाइड ले लेके इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा इज थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा by 2. अब ये रिकॉर्डिंग को बाद में फिर से सुन रहे हैं ना, यस सर. और नोट्स मेंटेन कर रहे हैं. यस सर. ओके, एक बार आप नोट्स तो मेंटेन कर रहे थे, उसके फोटोज भी जाओ, एक बार देखना चाह रहा हूँ. ओके. आप आवाज नहीं दे रहे मगर माशाल्लाह पास तो हो गया, मगर वो खुशी की बात है इसलिए मैं भी ज्यादा बोल रहा हूँ. नहीं कर ले रहे आप, पास तो हो गए. अभी तक पूरे पेपर क्लियर है ना. यस सर. अच्छा चलिए राइट. सो इंटीग्रल ओवर सी. अभी एलएचएस कर रहे हैं. देखो अपन एलएचएस बहुत बड़ा हो जा रहा है. एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, ये देखो 1/2 आउटसाइड हो जाता है और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना. अपर लिमिट थीटा की प्लेस पर 2 पाई लगाना है. cos 2 पाई 2 इंटू 2 पाई मतलब cos 4 पाई माइनस cos 2 इंटू 0 मतलब cos 0 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर भी लिमिट्स लगाएंगे. अपर लिमिट पहले थीटा की प्लेस पर 2 पाई माइनस साइन 4 पाई. ये पूरा हो गया अपर लिमिट में. माइनस लोअर लिमिट में 0 लगाएंगे तो 0, ये 0 माइनस 0 तो कुछ भी कर लीजिए वहां पर 0 ही होगा. और यहाँ पर देखो थोड़ा बेसिक फॉर्मूला याद रख लो. दिस इज 1/2 इंटू cos 4 पाई की वैल्यू cos पाई is -1, 2 पाई प्लस 1, 3 पाई -1, 4 पाई प्लस 1, 5 पाई -1 ऐसा होता. माइनस cos 0 की वैल्यू 1. कैलकुलेटर में भी आता है ये, अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. और ये 2 पाई. अब ये देखो साइन 4 पाई 0, 0 पाई एनी नंबर इज 0, तो ये ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे. ये +1 -1 कैंसिल, 0 इंटू एनीथिंग इज 0. ये 2 से ये 2 कैंसिल. तो फाइनली 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 एलएचएस वैल्यू वी गॉट इट एज एफ डॉट डी आर का जो आंसर अपने को मिलना है एलएचएस में वो आ गया है पाई. ये हो गया एलएचएस का आंसर. अगर एग्जाम में आपको ना वेरीफाई नहीं देके ई वॉल्वेट बोल के बोला तो सिर्फ यहाँ तक ही करो आप, एलएचएस तक ही करना, खत्म कर देना एलएचएस.
कोई एक पार्ट का क्या? आंसर करता है। अभी नाउ आरएचएस भी कर रहा है राइट हैंड साइड। तो व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या है ये थ्योरम का? डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस। सो वी फाइंड आउट कर्ल एफ हियर। एन कैप अपन प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट के कैप लिए थे, अभी डायरेक्ट नहीं लेंगे क्यों बोलते क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, वो देखेंगे बाद में। पहले तो लेट अस फाइंड आउट कर्ल एफ। कर्ल एफ CURL कर्ल एफ। पहले थ्योरम में भी बोला था मैं, कर्ल एफ इज नथिंग बट कोई भी फंक्शन का कर्ल फाइंड आउट करना मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है डेल के साथ में, एंड दैट क्रॉस प्रोडक्ट विल बी डूइंग बाय a determinant I I think we should go for the next page। ये फिर अधूरा हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। कर्ल एफ is equals to del cross f। Now the cross product of these two will be I j k। डेल के कोफिशिएंट्स क्या है? डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। नाउ एफ कोफिशिएंट्स क्या है? क्वेश्चन में जो एफ के जो कोफिशिएंट्स है, आई क्या 2x माइनस वाई है, और जे का माइनस वाई जेड स्क्वायर है, और के का माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड है। ये डिटर्मिनेंट विल बी क्लोज। तो वी हैव टू क्लोज प्रॉपरली। तो अच्छे से क्लोज कर रहा हूँ मैं। दिस इज द डिटर्मिनेंट। नाउ व्हेन वी आर सिंप्लीफाइंग दिस वन with respect to I, प्लस माइनस प्लस इज द रूल, प्लस माइनस प्लस। आई को नेग्लेक्ट कर दिए, रो एंड कॉलम बोलो। विथ रेस्पेक्ट टू वाई इसको करना, विथ रेस्पेक्ट टू जेड इसको करना। क्या आंसर आ सकता आई के साथ? विथ रेस्पेक्ट टू वाई मीन्स वाई स्क्वायर इज 2y माइनस 2yz AD माइनस with respect to z square is 2z minus into minus plus 2yz. Now second will be with minus sign. Again column and row we neglect. With respect to x 0 because no x. With respect to z no z plus k cap. Now column and row we have to neglect. With respect to x करेंगे तो x का है ऊपर है नहीं, माइनस तो विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये तो x 2x तो 0 हो जाता, y becomes 1 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ये भी पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, मतलब we are getting curl f value is curl f curl f value we are getting as only k cap। इसकी अपने को जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के, बेटर टू कीप इट इन बॉक्स। अब रही बात एन कैप की। अब एन कैप के लिए आप देखिए, सरफेस है अपने पास, सरफेस से भी एन कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक दूसरा हिंट क्या है, क्वेश्चन में अगर एक्स वाई प्लेन बोल दिया तो डायरेक्टली एन कैप की वैल्यू ले लीजिए आप के कैप। एक्स वाई प्लेन पे एन कैप की वैल्यू के कैप। और रही बात अब डीएस की, डीएस इज इक्वल टू फॉर्मूला इज फर्स्ट थ्योरम में भी करे देखो, dx dy एक्स वाई प्लेन पे काम हो रहा है तो बहुत इजी हो जाता क्वेश्चन आपका। एन कैप डॉट के कैप, सो दिस इज इक्वल टू dx dy बाई एन कैप की वैल्यू ऑलरेडी के कैप है, डॉट के कैप के डॉट के वन, मतलब डीएस की जो वैल्यू मिल रही है आपको दैट इज dx इंटू dy। नेक्स्ट नेक्स्ट finally we have to write down the limits।
लिमिट्स ऑफ एक्स, लिमिट्स ऑफ एक्स और लिमिट्स ऑफ वाई होना है। इसके लिए आप चाहे तो ये वाला फिगर फिर से देख सकते हैं, ये वाला फिगर, ये वाला, ये वाला। यहाँ पर x के लिमिट जीरो से ले, ये x, ये y, ये x, ये y, x के लिमिट जीरो से लेके 1 तक है। y के लिए y के पैरेलल में किस स्टेप बनाएंगे अपन, इसकी लोअर लिमिट y इज इक्वल टू जीरो, और एक फंक्शन को y में कन्वर्ट करें तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता, 1 - x²। ये आ गया आपके पास लिमिट्स। अब लिखो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, ये कहाँ लिए, ऑन x एक्सिस पे लिए, y के लिमिट्स, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 - x²। ये कहाँ पे लिए, ऑन स्ट्रिप पे लिए। ये पूरे वैल्यूज को आपके आरएचएस में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर आ गया, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस आरएचएस। Finally, we have to show the answer is again pi only. Curl F dot m cap ds is equal to, अभी देखो x के लिमिट्स 0 से लेके 1 तक है, y के लिमिट्स 0 से लेके √1 - x² तक है। कर्ल F की वैल्यू k कैप आई थी अपने को, n कैप की वैल्यू k कैप इच है। अगर आप सरफेस के फॉर्मूले से भी करें तो होता है छोटा इंटू dx इंटू dy। नाउ k डॉट k1, x इज इक्वल टू 0 टू 1, y इज इक्वल टू 0 टू 1 - x²। के डॉट के वन हो गया तो यहाँ dx dy बच जाता। अच्छा अभी देखो एक हिंट देता हूँ मैं आपको, आगे भी चल के कहीं तो भी और फ्यूचर में भी काम आता है ये पॉइंट, तो लिख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ रही तो ठीक, देख डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर कुछ भी लिमिट्स रहने दो, dx dy, यहाँ पर कुछ भी फंक्शन नहीं बचा, समझ, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ, यहाँ पर जो भी फिगर है उसका एरिया, एरिया ऑफ एस। तो यहाँ पर देखो अपने पास भी कुछ भी नहीं बचा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ दिस एस। एस क्या है, एक सर्कल है, तो उसका डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो अपना सर्किल जो है वो ये है, x² + y² इज इक्वल टू 1 वाला सर्किल है। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। एरिया का फॉर्मूला πr², दिस इज पाई एज इट इज, रेडियस तो 1 यूनिट है, 1², मतलब आंसर कितना आ गया, पाई से आ गया। तो एरिया ऑफ सर्किल इसमें कितना हो गया, पाई आ गया। किसकी वैल्यू, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कर ले डॉट एन कैप ds की वैल्यू। तो आप एलएचएस का आंसर भी अगर आप कैलकुलेट करके करें तो टाइम ज्यादा लग जाता, अदरवाइज आप करना है तो कर सकते हो। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस हेंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई। ये ये क्वेश्चंस में सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत टाइम लगता भाई स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन देखेंगे अब स्टोक्स थ्योरम के ऊपर। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो भी करे जैसा है, 2 क्वेश्चन करे तो नहीं है, तीसरा क्वेश्चन भी देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है तो देखो अच्छे से, तीसरा क्वेश्चन है ये टॉपिक का, यूज यूज
Stokes theorem. Use Stokes theorem to evaluate integral over C x plus y dx plus 2x minus z 2x minus z into dy plus y plus z into dz, where C is the boundary of the triangle, where C is the boundary of the triangle with vertices. ट्राइंगल के ऊपर वेरीफाई करना है with vertices 2 0 0 comma 0 3 0 comma 0 0 6। अच्छा देखिए, अपन इवालुएट कर रहे हैं, इवालुएट मतलब कोई भी एक पार्ट बसे, वेरीफाई नहीं होता है, इवालुएट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अभी आपको स्टेप नंबर 1 इसका बता देता हूँ। दैट इज वी आर यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम बाय स्टोक्स थ्योरम बाय स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी f dot dr is equals to डबल इंटीग्रेशन ओवर s कर्ल f डॉट n कैप इंटू ds। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर इवालुएट पूछा ना, तो इसको एलएचएस करने को प्रॉब्लम होता अपने, तो आरएचएस कर लिए तो हो जाता, कर्ल एफ इजीली कर सकते हैं। एन कैप की वैल्यू कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर उन्होंने मेंशन नहीं करा, तो वो एक्स वाई प्लेन पे रहता है, एन कैप की वैल्यू के कैप ले लेते, और डीएस की वैल्यू भी डी एक्स डी वाई बाई एन कैप डॉट के कैप फॉर्मूले से इजीली आ जाती। तो लेट अस फाइंड आउट नाउ। और ये जो फिगर दिख रहा, वो भी अपने को देख सकते हैं यहाँ पर। ये फिगर, ये क्वेश्चन में जो अपने को जरूरत है, अगर आप नहीं उतारे तो भी नो प्रॉब्लम, बट अगर आप इमेजिन करना चाह रहे हैं भाई वो फिगर दिखता कैसा है, तो उसको दिखने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे दिखता हूँ। वाई एक्सिस, ये आपको ये 3D में दिखाना है ये फिगर। ये फिगर है। 3D में जब आप इसको इमेजिन करेंगे ना, तो ये जो एक्स एक्सिस है वो इधर आ जाता, दैट इज योर फर्स्ट वर्टेक्स, दिस इज 2 0 0। ये वाई एक्सिस is this one, that is a point B, second point 0 3 0, this is Z axis, point C will be expected here 0 0 6, इसका फिगर है। तो आप RHS करना है अपने को खाली बस, तो पहले कर ले, फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्टली, अपने पास कर ले करने का ऑप्शन है। लेट अस फाइंड आउट कर ले फिर कर ले, दिस इज नथिंग बट डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ, दिस इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, डेल कोफिशिएंट्स डो बाई डो एक्स
डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। एफ के कोफिशिएंट्स यहाँ पर एक्स प्लस वाई, दूसरा 2x माइनस जेड, और तीसरा एक वाई प्लस, ये क्लोज। तो डिटर्मिनेंट करने का तरीका आपने को कई बार अपन सीख चुके हैं, बार बार आते जा रहा, कोई बात नहीं, बार बार करते जाएंगे। प्लस माइनस प्लस, रो एंड कॉलम विद नेग्लेक्ट, this one with respect to y and this one with respect to z we have to do y cap into, with respect to y करेंगे y becomes 1 plus 0, so 1 only, minus with respect to z, z becomes 1, minus into minus plus 1, now minus j cap into column and row j का नेग्लेक्ट करके, with respect to x no x 0, with respect to z no z 0, plus k cap again with respect to x, sorry, yes, with respect to x is 2 here, minus with respect to y is 1 here, so ये 1 plus 1 is 2, 2i प्लस के कैप, कर्ल एफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कर्ल एफ इज इक्वल टू 2i प्लस के कैप। तो ये हो गया। एन कैप की वैल्यू क्या हो सकती है, ये कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट वर्क करेंगे, और डी एक्स की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में जो करे थे ना, डी एक्स डी वाई बाई एन कैप डॉट के कैप, तो ये डी एक्स डी वाई, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गए, बस ये क्वेश्चन को खत्म करने के लिए इनफ है वो। अच्छा लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स को बाद में देखेंगे। डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर एस, कर्ल एफ की वैल्यू कितनी है भाई, 2i प्लस के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू फिर से के कैप, ds की वैल्यू dx इंटू dy। नाउ k डॉट k इज 1, बाकी i तो मल्टीप्लाई होता नहीं, तो दिस इज डबल इंटीग्रेशन ओवर s dx dy। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखे थे, इधर देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखे थे, अगर कुछ भी नहीं है वहां पर वैल्यू, तो एरिया ऑफ s, एरिया ऑफ s मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल, so this represents area of triangle, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, बोलेंगे सर बेस क्या होता, ये इसका बेस होता कितना, 3, 030 है ना, ये 3 यूनिट्स होता, और इसकी हाइट बेस इज 2, हाइट इज 3, मतलब एक्स वाई प्लेन में देख रहे ना, ये 2 ये 3, बेस इज 2, हाइट इज 3, ये हाइट आपको देखिए आप इधर है एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है बोल के अपन एन कैप की वैल्यू के कैप लिए थे, वो 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 3, दैट्स इट। क्योंकि अपन इसमें क्या कर रहे थे, इवॉल्वेट बोल रहे थे, खाली इवॉल्वेट मतलब अ, मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करे स्टोक्स थ्योरम से, मतलब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करे स्टोक्स थ्योरम से। तो ये स्टोक्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है माशाल्लाह से। अभी अब रहेगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको भी 2 क्लासेस में कर सकते हैं अपन, एक क्लास में नहीं होता, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, इसको जरा टाइम लगेगा अच्छे से, 2 सर क्लासेस। सॉरी, आप क्या बोले समझ रही, मजा आ रही। स्टोक्स थ्योरम हो गया है कंप्लीट, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसके बाद करना है, वो लास्ट टॉपिक है, बट उसको 2 क्लासेस में करना पड़ता, एक क्लास में एक ही क्वेश्चन होता, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता, ठीक है। आपके ओके नोट्स भी जाइए, चेक करता हूँ मेरे पास, पीडीएफ भी जाइए, ओके। जी सर। नोट्स भी जाइए, नोट्स आपके कैसे लिख रहे देखना चाह रहा हूँ मैं, हाँ ओके। ठीक है। चलिए मीटिंग एंड कर ओके देंगे।